Dear students, very good morning to all of you. Today I am going to discuss the third part of the atomic structure unit, limitations of Bohr's atomic models and Heisenberg uncertainty principle. Now the applications of Bohr's theory, Bohr's atomic models we have learned in the first video. First, quantization of energy. Bohr postulated that energy of electron in any orbit is quantized and there is no emission or absorption of energy. Okay? Quantization means कि if electrons revolving around the nucleus in its own orbit, there is no emission or absorption of energy. Okay? Thus, electron continues moving in a particular orbit with a definite amount of energy, and this explains the stability of atom that Rutherford could not explain. ठीक है? So जब तक इलेक्ट्रॉन अपने घर में है तब तक वो ना तो एनर्जी लेगा ना तो एनर्जी देगा, इसलिए मैक्सवेल्स थ्योरी जो थी वो यहाँ पे काम नहीं करेगी. उसके डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ईच ऑर्बिटल्स इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जो हर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है, एक फिक्स है. उसके लिए फॉर्मूला पीछे पड़ा है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. बोह्र's theory सक्सेसफुली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. Explanation of hydrogen spectrum. So Bohr could explain that emission spectrum of hydrogen atom consists a large number of lines, that is Lyman Barman Paschen bracket. It also explains the frequencies of various series of spectral lines in the hydrogen spectrum. तो जो फॉर्मूला पढ़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया. Calculation of important quantities like radii of nth orbit, energies of associated with nth orbit and the velocity of electron in nth orbit. तो उसके लिए उन्होंने quantities के लिए formula derive किया था. So these are some applications or success of Bohr's theory. However, there are some limitations of the Bohr's theory. The first, it explained the spectra of hydrogen atom and hydrogen-like atoms, but failed to explain the spectra of multi-electron species. जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये theory explain नहीं कर पाती है. It failed to explain the relative intensity of spectral lines. कि जो spectral lines आती है उनकी relative intensities किसी का कम है किसी का ज़्यादा है उसको explain नहीं कर पाए. This theory provides no explanation for the splitting of spectral lines in an electric field which is known as Stark effect and in a magnetic field which is known as Zeeman effect. ठीक है. Bohr's model is based on particle behavior of electron. This is not correct. तो just a little while आगे हम लोग पढ़ेंगे Heisenberg uncertainty principle. It does not throw light on the distribution and arrangement of electrons in atoms, and it goes against Heisenberg uncertainty principle. So these are some limitations of Bohr's theory. Now de Broglie matter wave. Okay? So de Broglie just extended the idea of wave particle duality of light to matter particles. ठीक है. आइंस्टीन ने एक लाइट ड्यूल कैरेक्टर दिया था कि लाइट के अंदर क्या है, एज ए वेव एज ए पार्टिकल कैरेक्टर है, जब उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था. क्योंकि 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था यूजिंग द प्लांक्स थ्योरी. उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था क्लासिकल फिजिक्स में. ठीक है. तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या था. तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट में क्या है, दो कैरेक्टर है, एज ए वेव एज ए पार्टिकल. फिजिक्स में जनरली क्लासिकल फिजिक्स में हम लाइट को क्या मानते थे, वेव मानते थे. फर्स्ट टाइम आइंस्टीन ने लाइट्स को पार्टिकल कैरेक्टर लेके एक्सप्लेन किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया गया. ठीक है. डी ब्रॉगली ने भी वही काम किया, फ्रेंच फिजिसिस्ट ने. इन्होंने जस्ट एक्सटेंड कर दिया, नॉट ओनली लाइट, इस यूनिवर्स के जितने भी मैटर हैं उनमें क्या है, दोनों वह कैरेक्टर है. सो ऑल द डिस्क्रीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन मोशन, that is electron, proton, neutron, atoms, molecules, possess particles as well as wave characteristics. तो डबल रोल है इनका, they behave like a particle and as well as wave, दोनों कैरेक्टर उनके पास है. ठीक है. इसलिए इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली ड्यूल कॉन्सेप्ट. या मैटर पार्टिकल जो भी इस यूनिवर्स का मैटर है उसमें एज वेव भी बिहेव करता है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है. द वेव एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर वेव. तो इसको बोलते हैं मैटर वेव. नाउ अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, कि अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, E इक्वल टू एच इंटू न्यू. एंड फॉर पार्टिकल कैरेक्टर आइंस्टीन इक्वेशंस E इक्वल टू mc स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशन से मिला दीजिए तो E मतलब h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर और hc बाई लेमडा, न्यू की जगह पे लिख सकते हैं c बाई लेमडा इक्वल टू mc स्क्वायर. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c से c कैंसिल हो गया, सिंस न्यू इक्वल टू c बाई
lambda. Now rearranging and substituting c by the velocity of electron v. So let us assume the velocity of electron in any orbit is given as v. So c की जगह पे क्या रख दिया, v रख दिया. So lambda equal to h upon m into v. M into v is known as momentum. P, where p is the momentum of particle and lambda is the wavelength of matter wave. This is known as the de Broglie equation. तो de Broglie ने जस्ट एक इक्वेशन डिराइव किया. इन्होंने आइंस्टीन के ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया मैटर के लिए. किस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं सब में क्या है, डबल कैरेक्टर है, एज वेव एज ए पार्टिकल. ठीक है, एज वेव की तरह है तो उनकी एनर्जी का फॉर्मूला प्लांक थ्योरी E इक्वल टू एच इंटू न्यू, और आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर पार्टिकल कैरेक्टर E इक्वल टू mc स्क्वायर. दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए. ठीक है, c से c कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा आएगा. और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा तो c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, उसकी वेलोसिटी भी लिख दिया. तो एक हमको इक्वेशन मिल गया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v और h बाई p. p इज मोमेंटम, m इंटू v इज मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, so this lambda is known as de Broglie equation. Now consequences of de Broglie equation. So from this equation lambda equal to h upon m into v, it is obvious that h by mv is negligible for relatively large object. अगर मान लीजिए लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं, तो जिनका माइक्रोस्कोपिक है, मास ज्यादा है, तो आप इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करिए. मास ज्यादा होने से लैम्डा की वैल्यू नेग्लिजिबल अमाउंट में आता है. जैसे सपोज कैलकुलेशन आगे करेंगे कि मान लीजिए कि h की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 है. मास मान लेते हैं किसी का मास 100 ग्राम है, तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10 टू माइनस 3, और वेलोसिटी उसकी मान लीजिए कि लाइट की वेलोसिटी के बराबर है क्योंकि दैट इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता. तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है, तो ऊपर में कितना जस्ट ऑर्डर निकालते हैं तो माइनस 34, नीचे में कितना आ रहा था 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब कैंसिल हो गया, माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 8. 8 ऊपर गया तो कितना आया, माइनस 34 इंटू 8 41, और 1 ऊपर जाएगा तो मतलब 40, तो नियर अबाउट 10 टू द पावर माइनस 40 इस रेंज में आएगा. ठीक है, मीटर के रेंज में आएगा. तो 10 टू द पावर माइनस 41 मीटर. ठीक है, सो दैट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल. ठीक है, तो इसलिए अगर जिसका मास ज्यादा है, माइक्रोस्कोपिक ज्यादा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसका मास ज्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, कमती आएगा. वही आप इलेक्ट्रॉन के लिए रख लीजिए. सो 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 प्लांक की वैल्यू. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, और वेलोसिटी भी मान लीजिए लाइट के बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ठीक है, तो माइनस 34 माइनस 31 कैंसिल हो गया, माइनस 3, नीचे से 8 ऊपर जाएगा तो माइनस, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, दैट इज नोन एज एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिसका मास क्या है, कमती है, तो उसके लिए लैम्डा क्या आ रहा है, रीजनेबल अमाउंट में आ रहा है. लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसका मास ज्यादा है, लैम्डा क्या आ रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में आ रहा है, मतलब दैट इज नो वैलिड. ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं नटसेल कि फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव कैरेक्टर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल कैरेक्टर. फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव नेचर सप्रेस कर जाता है, पार्टिकल नेचर डोमिनेट ओवर वेव नेचर. ठीक है, limitation of de Broglie equation. So de Broglie equation is applicable only to microscopic particles like electron, proton, neutron, atom. जिसका मास कम है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. It has no significance for microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है, जैसे हम आप जो भी इस यूनिवर्स का जिसमें मास ज्यादा है उसमें एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या मोमेंटम ज्यादा होगा. वेव नेचर उसमें सप्रेस कर जाता है, उसके अंदर डोमिनेट नहीं करेगा. उसके नेचर डोमिनेट क्या करेगा, जिसमें मास ज्यादा है उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट्स ओवर वेव कैरेक्टर. ठीक है, इसे कहते हैं हर आदमी के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, जो जिस संगत में रहता है उसके हिसाब से उसमें उसका कैरेक्टर डोमिनेट होता है. ठीक है, तो उसी तरह जो भी इस यूनिवर्स में मैटर है उसमें दोनों कैरेक्टर एज ए वेव एज ए पार्टिकल. ठीक है, इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक है, जो इनका मास कम है, उनमें क्या आएगा, वेव कैरेक्टर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल कैरेक्टर. जो माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जिनका मास ज्यादा है, मैसिव है, उनमें क्या आएगा, पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेट्स ओवर वेव कैरेक्टर. ठीक है, इसलिए लिमिटेशन ऑफ de Broglie इक्वेशन इज दैट इट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. जैसे हम आपके लिए ये सुटेबल नहीं है.
एप्लीकेबल नहीं है। चलिए न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछा हुआ है। CO2 मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 440 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुक का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ में ध्यान देना है वेवलेंथ ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। तो पहला काम हमको ये करना है कि मास ऑफ ए CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ओवरऑल CO2 का मास कितना होता है, दैट इज एटॉमिक मास, मोलर मास। तो कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, मतलब 32 प्लस 12 44 ग्राम। इसलिए इसको केजी में चेंज किया तो 0.044 आ गया, डिवाइडेड बाई 1000 एंड देन डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। सो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज एवोगाद्रो नंबर। हमको किसका निकालना है, सिर्फ एक CO2 मॉलिक्यूल का निकालना है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, तो v की वैल्यू आपको दिया हुआ है, मास आपने निकाल लिया, h इज प्लैंक कांस्टेंट, फॉर्मूले में रख दीजिए, रख के सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल व्हिच हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस वन। सो मोमेंटम h अपॉन लैम्डा, मतलब लैम्डा इक्वल टू h बाई p, तो उसके हिसाब से मोमेंटम p इक्वल टू h बाई लैम्डा, दोनों वैल्यू हमें पता है, रख के सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो मास देगा, वेलोसिटी देगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, मोमेंटम देगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। नाउ हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइगेनबर्ग ने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि आप डी ब्रॉगली की बात सही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक है उनमें क्या आएगा, वेव नेचर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल नेचर। लेकिन अब वेव नेचर है, तो वेव नेचर होने के नाते हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि अगर किसी पत्थर को आप 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं तो 10 सेकेंड के बाद किधर जाएगा वो हम बता सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला s इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। प्रोजेक्टाइल बता सकते हैं, पाथ बता सकते हैं, बट वेव के लिए हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it states that it is not possible to determine simultaneously the exact position and exact velocity or momentum at a given time of a microscopic particle. तो microscopic particle के लिए exactly हमको simultaneously हम दोनों वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दें और एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम उसका बता दें, ठीक, अलग अलग बता सकते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली, ठीक है। Thus, more precisely, one can define the position of electron with the less certainty one is able to define its velocity and vice versa। मतलब जितना एग्जैक्टली कि अगर हम सर्टेनिटी के साथ उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो उतनी ज्यादा गलती होगी हमें उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम बताने में, ठीक है। The uncertainty in measurement of position, that is delta x, and uncertainty of determination of momentum delta p are related by Hagen-Ward relationship as, तो delta x into delta p should be greater than or equal to h upon 4 pi, और delta p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mass into delta v। देखिए अगर मोमेंटम और पोजीशन अनसर्टेनिटी दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते इसमें हम इक्वल टू लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे सपोज कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज कांस्टेंट, तो जैसे सपोज मान लीजिए कोई दो नंबर है a इंटू बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो जैसे सपोज मान लेते हैं कि 8 इंटू 8 क्या रखा 64, ठीक है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर किसी एक वैल्यू को हम डबल करेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 को फिक्स रखना है तो 8 को हमने क्या किया, हाफ किया, तो दैट इज 4, तो दूसरा 8 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दैट इज 60, ठीक है ना। तो वही चीज है कि अगर जितना एग्जैक्टली हम इसको निकालेंगे उतनी ज्यादा गलती होगी हमें इसको निकालने में, ठीक है। सो इट इज नॉट आवर लिमिटेशन, इट इज जस्ट टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। Outcomes of uncertainty principle. So is according to the most important outcomes of uncertainty principle is the Bohr's picture of an electron. So Bohr atomic model is not according to the uncertainty principle. इसका भी लिमिटेशन वही है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही सही है, माइक्रोस्कोपिक के लिए ये सही नहीं है। The most important significance of uncertainty principle is the electrons cannot exist within the nucleus of an atom, ठीक है ना। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल है, तो यहाँ में आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, मास दिया हुआ है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी
सॉरी पोजीशन दिया हुआ वेलोसिटी में पूछ रहा है। तो जस्ट